Today in our English literature class, I will be explaining you the further portion of the chapter which I have explained in your previous lecture. And the name of the chapter is A Home is Not a House. Okay, so in this chapter, we were studying about a young boy who just passed out from his junior high schools, and he went into the high schools. Okay, and the school in which he joined or he took admission was twice as big as his previous school, so he was not feeling very comfortable there, and also none of his friends joined him in his new school. Okay, so that's why the author was also feeling very lonely there. And one more thing, that in his previous school the author was the head of his class. Okay, you could say the monitor of his class, and that's why he enjoyed much power and much attention there. But in his new school he joined as a freshman. Obviously baat hai ki he joined as a freshman and he was a junior there, so he was also not feeling very comfortable, or he could not cope up with the environment cope up with the new environment there. Okay, so he used to feel very lonely, and always he used to went to his old teachers, that means the teachers of his previous school. Okay, and the teachers used to encourage him that you should take part in the extracurricular activities of the new school, so that you could make friends and you could feel comfortable there. And also they used to make him promise that after you will get you know comfortable there, you will have to come and meet us also, because and that was in a psychological way, but the author understood that they were trying to make him feel comfortable, and it does the work. He used to feel comfortable when the teachers used to say that. Okay, so one Sunday afternoon when he was working on his homeworks, his cat was beside him. Okay, so the cat he rescued, the author rescued the cat when she was a kitten. Okay, and from that time the cat the never used to leave his side. She always used to be beside the author, whatever he do. Okay, and when he was working on his homework and his mother was doing something near the fireplace, he noticed, that means the author noticed, that some smoke was coming from the ceiling. Okay, and further, as in the time he could react, the smoke filled the whole room and it nothing was visible there. So his mother, the author, and the whole family just gathered themselves and they ran out in the lawn, or you could say the front yard of the house. And the author noticed that the whole roof of his house was engulfed in a fire. Okay, and as he was watching the scene, he just noticed that his mother ran into his house from nowhere. And now we will continue the story. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on a lawn and in crazed state ran back into the house. I knew that she was after. My mother my father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were only things that she had to remember him, but still I screamed her mother, sorry mom, no. तो अभी क्या होता है ना, ये कहता है ऑथर कि जब मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी या मेरी मदर जब अंदर घर में भागी रहती हैं दौड़ के आग में, तो फिर वो क्या देखती हैं कि वहाँ पर ना वो जो मदर रहती हैं ऑथर की, वो एक मेटल बॉक्स लेके बाहर से अंदर से आती हैं जिसमें पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भरे रहते हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, जल्दी से उस केस को या जो मेटल बॉक्स रहता है उसको ड्रॉप कर देती हैं लॉन में, और इन ए क्रेज स्टेट, मतलब बिल्कुल जैसे एकदम थोड़ा सा क्रेजी, मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से आप कुछ समझ में ना आना, थोड़ा पागलों टाइप का, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में वो वापस से अंदर जाती हैं घर के। और ऑथर कहता है कि मुझे पता होता है कि वो अंदर गई हैं मेरे फादर की पुरानी फ़ोटोज़ को लेने, क्योंकि जो इसके फादर रहते हैं ऑथर के, वो जब ये छोटा था, बच्चा था, उसी समय उनकी डेथ हो चुकी होती है इनके फादर की। और इनकी मदर, वो जानता था ऑथर कि मेरी मदर बिल्कुल भी उनकी आखिरी निशानी या उनकी यादों को खोने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोग्राफ्स ही लास्ट चीज़ें बची थी जो इनके पास थी। ठीक है, दे वर नॉट ओनली द थिंग्स शी हैड टू रिमेंबर। अच्छा, वो केवल इकलौती ऐसी चीज़ें थी जिससे इनकी मदर उन फादर को याद कर सकती हैं। ठीक है, स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, लेकिन फिर भी ये चिल्लाता है, अपनी मदर को चिल्लाता है, मॉम नो, मम्मी अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother in there." अच्छा, अभी ये ऑथर क्या कहता है कि जैसे ही मैं भागने को होता हूँ अपनी मदर के पीछे, मुझे महसूस होता है कि एक मजबूत हाथ मेरे पीछे मेरे कंधों को पकड़ के रख रहा है। ठीक है,
जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो एक फायरमैन था। फायरमैन सबको पता है क्या होता है? फायरमैन मतलब होता है कि जो आग बुझाने वाला होता है, ठीक है। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद ट्रक्स। मतलब कहता है कि मैंने अभी नोटिस भी नहीं किया था कि स्ट्रीट जो थी वो ट्रकों से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रैस्प। और ये जो फायरमैन इसको पकड़ के रखा था, तो ऑथर उससे छूटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसे अपने मदर के पास जाना था, ठीक है। और ऑथर चिल्लाता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी मदर वहाँ पर अंदर फंसी हुई हैं। He held on to me while the firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that it were that if he were to let go, I would run. He was right. अच्छा, अभी ना ऑथर कहता है कि वो फायरमैन मुझे फिर भी नहीं छोड़ता है, और उसे पता था कि मैं बिल्कुल ही लॉजिकली, मतलब बिल्कुल भी लॉजिक वाली बातें इस समय नहीं करूँगा और लॉजिक वाले काम नहीं करूँगा, और मुझे वो पकड़ के रखता है जबकि बाकी फायरमैन अंदर जाते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं जिनको बचाने के लिए, ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए। और उसे पता था कि जैसे ही वो मुझे छोड़ेगा मैं बिल्कुल भाग जाऊँगा, और वो बिल्कुल सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हियर, ही सेड। तो जो फायरमैन रहता है वो कहता है, उसको पकड़े हुए ऑथर को कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। उन्हें वो जो अंदर गए हैं फायरमैन, वो उन्हें बचा के लेते आएंगे, ठीक है। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट डाउन इन अवर कार। सून आफ्टर दैट अ फायर इमर्ज फ्रॉम द आवर हाउस विथ माई मॉम इन टो। ही क्विकली टुक हर ओवर द अच्छा अभी क्या होता है ना, वो उसे ऑथर को ब्लैंकेट में लपेटता है अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन अवर कार, और इसे अपनी कार में, मतलब ऑथर की कार में बैठा देता है, ठीक है। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विथ माई मॉम इन टो। अभी क्या होता है, कुछ देर बाद ही क्या होता है, एक फायरमैन, मतलब जो अंदर गया रहता है, वो इसकी मदर को लेके वापस से अंदर से बाहर आता हुआ दिखता है, ठीक है। ही क्विकली टेक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। और फिर ये जो फायरमैन जिसने ऑथर को बचाया रहता है, वो तुरंत ही इनकी मदर को पकड़ता है या लेके जाता है और ऑक्सीजन मास्क देता है अपनी ट्रक से, ठीक है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग है। अभी ऑथर कहता है कि मैं तुरंत ही दौड़ के जाता हूँ अपनी मदर को हक कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल द टाइम आई एवर आर्ग्यूड विथ हर, मतलब कहता है कि जो भी समय मैं अपनी मदर से आर्ग्यू करता था, मतलब झगड़ा करता था या कुछ बहस करता था, या जब मैं उनसे थोड़ी नफरत करता था, बेसिकली नफरत कोई नहीं करता, मतलब थोड़ा गुस्सा जो होते हैं, तो क्या होता है, हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग है। वो सारी चीज़ें, वो सारे ख्याल गायब हो जाते हैं जब मुझे समझ में आता है कि मैं उन्हें खो दूंगा। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। मतलब वो ऑथर कहता है कि सॉरी, फायरमैन कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। बस उन्होंने थोड़ा सा धुएं को अपने अंदर इनहेल कर लिया है, मतलब खींच लिया है, सोख लिया है या ब्रीथ कर लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और फिर वो फायरमैन इनको यहाँ पर छोड़ के वापस से आग से लड़ने, बेसिकली आग को बुझाने चला जाता है, जबकि ऑथर और उसकी मदर वहाँ पर बैठी रहती है, डेज मतलब बिल्कुल अचंभे में या चौंक के, बिल्कुल शॉक में वहाँ पर बैठे रहते हैं। आई रिमेंबर मैचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। ऑथर कहता है, मुझे याद है मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और मुझे पता था कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me. अभी क्या होता है, 5 घंटों में ना वो आग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और इनका घर जो होता है बिल्कुल लगभग जल चुका होता है, ठीक है। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडेंट सीन माई कैट। और जब 5 घंटे बाद फाइनली जब थोड़ा माहौल शांत होता है, तो इसे अचानक याद आता है अपने ऑथर को कि इसने अपनी कैट को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और डर के इसी इसकी डर को और बढ़ाने के लिए क्या लगता है, ये महसूस करता है कि आसपास भी कहीं इसकी कैट दिख नहीं रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। अभी अचानक से इसे याद आता है कि मतलब नया स्कूल, मेरी कैट, मतलब नया स्कूल यहाँ पर इसलिए कह रहा है क्योंकि बेसिकली एक कैट ही इसका सहारा था और अभी वो भी गायब हो गई। इसे लगता है वो मर चुकी है, तो इसे लगता है कि मतलब मेरी कैट भी मर गई, मेरा नया स्कूल भी। तो ये सब चीज़ें सोच के इसे काफ़ी दुख होता है, ठीक है। सो आई थिंक टुडे दिस इज़ enough for today's lecture, and further portion I will explain in the next lecture. Thank you.